ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ اردو سے وابستہ خواہش مند ہمارے دفتر بھارتی ڈیجیٹل واقع غلام چوراہا نزد وشوا شانتی کالج 5 تا 7 بجے شام رابطہ کریں یا کال کریں 9553521111۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے پرواز ٹی وی۔ پرواز ٹی وی خبرنامے میں آپ تمامی کا خیر مقدم ہے۔ تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں آج کی حدیث مبارکہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، جس وقت تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو ملے اس کو سلام کہے، اگر دونوں کے درمیان کوئی درخت، دیوار یا پتھر حائل ہو پھر اس کو ملے سلام کہے۔ آغاز سے قبل ایک نظر ڈالیں گے آج کی سرخیوں پر۔ واٹس سبھا کے ذریعے حاصل ہونے والی درخواستوں کو فوراً آن لائن درج کریں اور مستحقین کو حکومت کے اقدامات سے مستفید کرنے کے لیے شفاف جانچ کریں۔ ضلع کلکٹر ہنمنتو۔ مسلم طلبہ کی تعلیمی پسماندگی کو ختم کرنا ہی MIM کا مقصد، سیاسی شعور کے ساتھ بے باک بے خوف آگے بڑھنے کی ضرورت، MLA احمد بن عبداللہ بلالہ۔ آرمور RTC بس اسٹینڈ میں کنٹرولر سے بس کا وقت دریافت کرنے پر کنٹرولر اور سیکیورٹی گارڈز کی مسلم جوڑے کے ساتھ گالی گلوچ و دھکم پل، تعصبیت کا بدبختانہ عمل، اقدامات کا مطالبہ۔ اب خبریں تفصیل سے۔ واٹس سبھا کے ذریعے جمع کی گئی تفصیلات کو عہدیداران آن لائن رجسٹر کریں اور ساتھ ہی ریاستی حکومت کی جانب سے دی جانے والی فلاحی اسکیموں کے بارے میں فیلڈ سطح پر مشاہدہ کریں۔ ضلع کلکٹر کا بیان۔ ضلع کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو نے بودھن منڈل کے بندرپلی گاؤں میں منعقدہ پبلک گورننس گرام سبھا میں حصہ لیا۔ کلکٹر نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ گرام سبھا کے ذریعے جمع کی گئی تفصیلات کے ساتھ ساتھ اس ماہ کی 26 تاریخ سے حکومت کی جانب سے پرجوش طریقے سے نافذ کی جانے والی فلاحی اسکیموں سے متعلق فیلڈ مشاہدے کے ساتھ آن لائن رجسٹر کریں۔ انہوں نے گرام سبھا کے چلائے جانے کے طریقے اور سہولیات کی فراہمی کا مشاہدہ کیا اور اطمینان کا اظہار کیا۔ رائتو بھروسہ، اندرما مکانات، راشن کارڈز، اندرما آتمیہ بھروسہ اسکیموں کے تحت تیار کردہ مسودہ فہرست کی جانچ کی۔ مختلف اسکیموں کے لیے گرام سبھا میں موصول ہونے والی نئی درخواستوں کے بارے میں دریافت کیا۔ درخواستوں کی مکمل جانچ پڑتال کرنے اور مکمل تفصیلات کو وقتاً فوقتاً آن لائن اپلوڈ کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ مختلف ذرائع سے موصول ہونے والی ہر درخواست کی جانچ پڑتال کی جانی چاہیے اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پہل کی جانی چاہیے کہ تمام اہل افراد کو فلاحی اسکیموں کے ذریعے فائدہ پہنچایا جائے۔ بعد میں کلکٹر نے بودھن شہر کے مضافات میں واقع گورنمنٹ سوشل ویلفیئر بوائز گروکل اسکول کا اچانک معائنہ کیا۔ اسٹور روم، کچن، ڈائننگ ہال و دیگر کا معائنہ کیا۔ اسٹور روم میں رکھے گئے چاول اور دیگر سامان کے معیار اور طلبہ کے لیے بنائے گئے دوپہر کے کھانے کا جائزہ لیا اور منتظمین کو اہم تجاویز پیش کی۔ مینو کے مطابق کھانا فراہم کرنے کا مشورہ دیا۔ کھانے پینے کی اشیاء کو محفوظ رکھنے کے معاملے میں تمام احتیاط برتیں اور کھانے کو صاف ستھرا ماحول میں تیار کریں اور مشورہ دیا کہ ہر روز کھانا پکانے سے پہلے کھانے پینے کی اشیاء کی کوالٹی چیک کریں، میعاد ختم ہونے والی اشیاء اور ناقص سبزیاں استعمال نہ کریں اور وقتاً فوقتاً مرغی کے انڈوں کی کوالٹی چیک کریں۔ انہوں نے کہا کہ اگر غیر معیاری چاول، کوکنگ آئل اور دیگر اشیاء فراہم کی جاتی ہیں تو اسے فوری طور پر حکام کے علم میں لایا جائے۔ اس موقع پر کلکٹر کے ہمراہ بودھن سب کلکٹر وکاس مہاتو، مقامی افسران موجود تھے۔ مسلم طلبہ کی تعلیمی پسماندگی کو ختم کرنا مجلس کا مقصد، سیاسی شعور ضروری، بے باک بے خوف انداز میں آگے بڑھنے کی ضرورت۔ احمد بن عبداللہ بلالہ کے ہاتھوں نظام آباد میں سالار ملت آل ان ون ماڈل گائیڈز کی تقسیم۔
احمد بن عبداللہ بلالہ رکن اسمبلی ملک پیٹ و انچارج نظام آباد مجلس اتحاد المسلمین نے مسلم طلبہ و طالبات کو مشورہ دیا کہ وہ تعلیمی میدان میں سخت محنت کے ذریعے بے باک بے خوف ہو کر آگے بڑھیں اور کامیابی حاصل کریں۔ ملک اور مسلمانوں کا مستقبل طلبہ کے کندھوں پر ہے۔ احمد بن عبداللہ بلالہ نے آج بلو ڈائمنڈ فنکشن ہال میں سالار ملت آل ان ون ماڈل پیپر گائیڈ کی ہائی اسکول میں زیر تعلیم 10ویں جماعت کے اردو میڈیم طلبہ و طالبات میں تقسیم کی۔ انہوں نے طلبہ کو مشورہ دیا کہ تعلیم کے حصول کے ذریعے ملک کا مستقبل روشن کریں۔ احمد بن عبداللہ بلالہ نے کہا کہ سالار ملت نے اردو میڈیم طلبہ کی تعلیمی مدد کے مقصد سے 10ویں جماعت کے طلبہ کے لیے سالار ملت آل ان ون ماڈل پیپر گائیڈ کی تقسیم کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ ہر سال مجلس کی جانب سے گائیڈ کی تقسیم عمل میں لائی جاتی ہے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ ملک میں ملت و قوم کے مسائل پر بے باک آواز اٹھانے والی جماعت صرف مجلس اور صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اسد الدین اویسی، حبیب ملت و فلور لیڈر مجلس اکبر الدین اویسی ہے۔ انہوں نے طلبہ میں سیاسی شعور بیدار کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس موقع پر شکیل احمد فاضل صدر ٹاؤن مجلس نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سالار ملت نے تعلیم کے لیے ملت کے طلبہ کو آگے بڑھانے کا جو خواب دیکھا تھا، اس کو آج بیرسٹر اسد الدین اویسی، اکبر الدین اویسی شرمندہ تعبیر کر رہے ہیں۔ محمد ادریس خان ڈپٹی میئر نظام آباد نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو دور کرنا ہے مجلس اتحاد المسلمین کا مقصد ہے۔ اس پروگرام میں محمد فیاض الدین صدر ضلع مجلس نظام آباد، میر مجاز علی سابق ڈپٹی میئر، رفعت محمد خان سینئر مجلسی قائد، شہباز معتمد ٹاؤن مجلس و کوآپشن ممبر، مجلسی کارپوریٹرز عبدالغفور مقیم، محمد ریاض احمد، اعجاز حسین، عبدالعلی باغبان، محمد منور علی، عبدالسلیم، محمد مستحسین، ارشد پاشا کوآپشن ممبر مجلس، انچارج مجلسی کارپوریٹرز سرفراز محمد خان، سید رفیع الدین کے علاوہ ایم اے عظیم بابا، محمد اویس احمد، عمر فاروق، سید خلیل، محمد وسیم، محمد مشتاق، ایم اے عزیز راہی، شیخ لئیق، ڈویژن 53 کے علاوہ کثیر تعداد میں مجلسی قائدین کارکنان موجود تھے۔ کارپوریٹر بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ، پھر الیکشن رہے گا، پھر آپ تمام سے میں ابھی شکیل صاحب نے اور ادریس صاحب نے آپ کو بتایا ہے کہ آل ان ون بنانے کا مقصد کیا ہے۔ یہ بڑے متبرک کام سے جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو چندہ مجلس اتحاد المسلمین جمع کرتی ہے، اس میں سے آپ لوگوں کو تعلیم میں بہتر آپ کا تعلیمی معیار ہو، اس کے لیے ٹیچنگ میٹیریل بناتی ہے، اور بھی دوسرے بچوں کو بھی ماحول پر حیدرآباد کے اندر بھی جتنے بھی اردو میڈیم کے بچے ہیں ان کو بھی ہر قسم سے مجلس اتحاد المسلمین سرکاری مدارس کے اندر جو بچے ہیں ان کی مدد کرتی ہے۔ تو بہرحال تمام چیزوں کا مقصد ایک ہی ہے کہ آپ کے مستقبل کے پیش نظر یہ محنت کر کر یہ آل ان ون بک بنائی گئی ہے۔ تو میری آپ تمام سے یہی گزارش ہے کہ اس کا مطالعہ کریے، اچھے سے مطالعہ کریے۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں ایک بھی آپ کو سوال اس بک سے ہٹ کے نہیں آئے گا، آپ کو جو بھی آئے گا اسی بک میں سے آئے گا۔ تو آپ یہ بک اگر پورے سبجیکٹس کے اگر سے آپ اچھے سے مطالعہ کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کو بہتر نشانات سے کامیابی حاصل ہوگی۔ سابقہ کونسلر بودھن و حرکیاتی قائد BRS بودھن کی معروف شخصیت میر الیاس علی نے BRS کو چھوڑ اپنے 500 سے زائد حامیوں کے ساتھ MIM میں لی شمولیت۔ میر الیاس علی کی MIM میں شمولیت سے مقامی عوام میں جوش، جماعت مزید مستحکم ہونے کے قوی امکان۔ ملک پیٹ MLA و ضلع انچارج MIM احمد بن عبداللہ بلالہ نے میر الیاس علی و نوجوانوں کو کیا کھنڈوا ڈالتے ہوئے خیر مقدم، عوام کی خدمت کے لیے پیش رہنے کا مشورہ۔ میر الیاس علی جو بودھن مستقر کی ایک معروف شخصیت ہے اور اپنا خاصا اثر و رسوخ رکھتے ہیں، فلاحی و ملی کاموں میں آگے رہتے ہیں اور قبل میں 2 دفعہ کانگریس پارٹی کے کونسلر رہ چکے
और बीआरएस से वाबस्ता रहते हुए भी अवामी खिदमत अंजाम दी और बोधन के कांग्रेस व बीआरएस के एमएलए के करीबी रुफका में शुमार किए जाते हैं ने आज एमआईएम की अवामी खिदमत और मिल्लत के मसाइल पर बेबाक नुमाइंदगी से मुतासिर होकर बीआरएस को छोड़ अपने 500 से ज्यादा हामियों के साथ मलकपेट एमएलए व इंचार्ज निजामाबाद अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला के हाथों एमआईएम में शमूलियत इख्तियार की। एमएलए अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला की आमद पर आतिशबाजी और बाइक रैली के साथ मीर इलियास अली व दीगर ने उनका वालाना पुरतपाक खैर मकदम किया और एमआईएम जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे लगाए। एमएलए अहमद बलाला ने पार्टी खंडवा डालते हुए पार्टी में खैर मकदम किया और बताया कि मजलूमों के हक के लिए आवाज उठाने वाली जमात एमआईएम और अवाम की खिदमत से जमात को मजबूत व मुस्तहकम करने का मशवरा दिया। मीर इलियास अली की एमआईएम में शमूलियत पर अवामी हलकों बिलखुसूस नौजवान तबके में मसरत देखी गई। कांग्रेस अवाम से किए 6 गारंटी स्कीमों पर फौरन अमल करें। बांसवाड़ा में मुनाकिदा ग्राम सभा प्रोग्राम में बीआरएस कायदीन का मुतालिबा, कांग्रेस पर तनकीदें, एमएलए पोचाराम ने जताई नाराजगी। बांसवाड़ा टाउन के 15वें वार्ड में वाक़ई आर्किटेक्ट संगम में पब्लिक गवर्नर्स वार्ड सभा मुनाकिद हुई। इस ग्राम सभा में मेहमान खुसूसी गवर्नमेंट एग्रीकल्चर एडवाइजर एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, एग्रो इंडस्ट्रीज के चेयरमैन कासुला बालराज और सब कलेक्टर किरण माई ने शिरकत की। जब पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी जलसे से खिताब कर रहे थे तो बीआरएस कायदी ने सवाल किया कि हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा 6 जमानतें क्यों नहीं, जिस पर उन्होंने बरहमी का इजहार किया। ये पार्टी से मुतल्लिक है। उन्होंने कहा कि सियासत करने से गुरेज करें। इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं कि तमाम मुस्तहिक़ गरीब इन 4 फ्लाई स्कीमों से मुस्तफीद हो सके, जिन्हें हुकूमत की जानिब से नाफिज की जाएंगी। तमाम अवाम से गुजारिश की कि इस मौके से फायदा उठाएं। ప్రభుత్వ పరంగా సమాధానం రావాల్సి ఉంటే అధికారులు సమాధానం చెప్తారు, అంతేగాని ఏదో నోటికి వచ్చింది మాట్లాడతామంటే ఇక్కడ తూర్పుకోవడానికి మేము తయారు లేదు. ఇక్కడ సరైన సమాధానం చెప్పాం, ఇంకా చెప్పాల్సింటే అధికారులు చెప్తారు. రైతు భరోసా అయినా, ఇంధనం ఇండ్లు అయినా, లేకుంటే తర్వాత రేషన్ కార్డ్స్ అయినా, ఇది ప్రభుత్వ మీటింగ్, ఇది పార్టీ మీటింగ్ కాదు, అధికారిక మీటింగ్. సబ్ కలెక్టర్ గారు ఉన్నారు, ఎంఆర్ఓ గారు ఉన్నారు, అధికారులందరూ ఉన్నారు. వారి సమక్షంలో జరుగుతున్నటువంటి సమావేశాలు ఇవి. కాబట్టి దీన్ని రాజకీయ వేదికగా మాత్రం దయచేసి ఎవరు కూడా దీన్ని వాడుకోవద్దు. మంచి పద్ధతులు కాదు. ఎందుకంటే లబ్ధిదారులు చాలా మంది ఇక్కడ ఆడవారు, మగవారు అందరూ ఉన్నారు. కాబట్టి దీన్ని రాజకీయ వేదికగా మార్చుకోవడం సరైన పద్ధతి కాదు అని నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. आरटीसी बस का वक्त दरियाफ्त करने पर कंट्रोलर वो आरजी सिक्योरिटी गार्ड्स की तासुबियत वो गुंडागर्दी, मुस्लिम जोड़े के साथ गाली गलोच वो धक्कम-पिल, काबिले मजम्मत, इक़दामात की जरूरत। आरमू टीएस आरटीसी बस स्टैंड में मुस्लिम जोड़े के साथ बस स्टैंड कंट्रोलर सुधन आउटसोर्सिंग सिक्योरिटी गार्ड्स का तासुबी रवैया, गाली गलोच करते हुए, डरा धमकाकर धक्कम पील करते हुए खातून को ढकेल दिया गया। तफसीलात के मुताबिक आरमू टाउन से ताल्लुक रखने वाले उमर अपनी अहलिया के हमरा हैदराबाद दवाखाने जाने के लिए आरमूर बस स्टैंड पर सुबह 7 बजे पहुंचे। आरमूर में बस न होने पर सुधन जानकारी के कंट्रोलर सुधन से दरियाफ्त किया कि हैदराबाद बस कितने वक्त पर आएंगी, जिस पर कंट्रोलर ने सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए गाली गलौज की और कहा कि मुफ्त बस सफर करने के लिए वक्त दरियाफ्त कर रहा है, रूम में डालकर मारा जाएगा। मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी अल्फाज का इस्तेमाल किया और वहां पर मौजूदा 2 आउटसोर्सिंग सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाया, जिस पर 2 सिक्योरिटी गार्ड्स ने उमर और उनकी अहलिया को ढकेल दिया और गालियां देते हुए लकड़ियां लेकर हमला करने की कोशिश की, जिस पर बस स्टैंड पर मौजूद मुसाफिरीन ने उनको हटा दिया। रियासती हुकूमत की जानिब से मुसाफिरीन को हर एक सहूलत मुहैया करने की कोशिश की जाए ताकि कोई मसाइल ना हो सके। आरटीसी कॉर्पोरेशन को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी कोशिश है, मगर आरमूर में आरटीसी मुलाजिम, कंट्रोलर और प्राइवेट आउटसोर्सिंग सिक्योरिटी गार्ड्स की हरकतें मंजर-ए-आम पर आ गई। बस स्टैंड पर मौजूद मुसाफिरीन, कंट्रोलर और सिक्योरिटी गार्ड्स की इस हरकत से हैरत ज़दा रह गई। मुसाफिर ने इन पर फौरी सख्त कार्रवाई करते हुए मुअत्तल करने का मुतालिबा किया। खाकी यूनिफॉर्म में होम गार्ड्स की गुंडागर्दी हुई। अवाम ने मुतालिबा किया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, ट्रांसपोर्ट वजीर पूनम प्रभाकर, आरटीसी डायरेक्टर आईपीएस सज्जनार, आरमूर डिपो मैनेजर व आला ओहदेदार इस जानिब तवज्जो मरकूज करें ताकि दोबारा इस तरह के वाक़यात ना हो।
मजलूमों के हक के लिए डट जाने वाली जमात एमआईएम है। किसी भी तबके के गरीब अफराद के साथ नाइंसाफी पर आवाज़ उठाने वाली जमात एमआईएम है। फुटपाथ ताजरीन के तासुरात। एमएलए अहमद बलाला की निजामाबाद आमद पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स मोहम्मद मुनव्वर अली, अब्दुल सलीम व दीगर एमआईएम कायदीन की निगरानी में ताजरीन बिलखुसूस खवातीन ने फूल बरसाते हुए एमएलए अहमद बिन बलाला का वालहाना किया गया इस्तकबाल और एमआईएम जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे। एमएलए मलकपेट व इंचार्ज निजामाबाद एमआईएम अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने आज मुत्तहिदा जिले के मुख्तलिफ मुकामात का सालारे मिल्लत ऑल इन वन गाइड्स तकसीम प्रोग्राम के सिलसिले में हंगामी दौरा किया। एमएलए मोहम्मद बलाला की निजामाबाद आमद के मौके पर शहर के अरसफ अली चौराहे पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स मोहम्मद मुनव्वर अली, अब्दुल सलीम व दीगर एमआईएम कायदीन की निगरानी में फुटपाथ ताजरीन ने एमएलए अहमद बलाला का वालहाना शानदार इस्तकबाल किया। बड़ी तादाद में खवातीन जो फुटपाथ पर कारोबार करती है, जिन्हें बल्दिया और पुलिस की जानिब से हिरासानी का सामना था, एमआईएम की बरवक्त नुमाइंदगी और एहतजाज के बाद फुटपाथ ताजरीन को राहत मिली ने एमएलए अहमद बलाला की बाकसरत गुलपोशी की और खूब फूल बरसाते हुए उनका वालहाना इस्तकबाल किया और शुक्रिया अदा किया और एमआईएम को मजलूमों के हक के लिए डट जाने वाली जमात बताया। कांग्रेस इख्तिदार में आते ही अवाम की सहूलत और रियासत की तरक्की को यकीनी बनाने के लिए बेमिसाल इक़दामात किए, जिससे अवाम को मिल रहा बड़ा फ़ायदा। नुडा चेयरमैन केशवेनु का खिताब। डिवीज़न 13 में कांग्रेस कॉरपोरेटर हारून खान की निगरानी में 10 लाख की लागत से सीसी सड़क के तामीरी कामों का आगाज। नुडा चेयरमैन व दीगर ने की शिरकत। पसमानदा डिवीज़न को तरक्की पजीर डिवीज़न बनाया गया और डिवीज़न में तमाम तर सहूलतें अवाम के लिए दी गई। कॉरपोरेटर हारून खान का बयान। ఈరోజు డివిజన్ నంబర్ 13 కార్పొరేటర్ అరుణ్ గారి కోరిక మేరకు ఈరోజు ఇక్కడికి ఇనాగ్రేషన్కి రావడం జరిగింది. దీంట్లో భాగంగా ఇక్కడ చాలా దుర్భరంగా ఉన్నది, అది చూస్తేనే భయంగా ఉంది. మొత్తం చెడావు దాంట్లో సీసీ రోడ్ నిర్మాణం కోసం శంకుస్థాపన కోసం పాల్గొనడం జరిగింది. దీంట్లో మా మిత్రుడు చంద్రశేఖర్ గారు, అలాగే సోదరుడు జావేద్ అక్రమ్ గారు, అలాగే ఎక్స్ డిప్యూటీ మేయర్ ఫహీం గారు, బ్లాక్ కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్ అబూద్ గారు, జాఫర్ గారు, అక్బర్ గారు, కదీర్ గారు, జాఫర్ గారు, మరి అజీబ్ గారు, ప్రతి ఒక్క ఇక్కడ పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, చాలా చక్కగా అరుణ్ గారు చెప్పారు. ఇప్పుడు 12 కోట్లతోటి అభివృద్ధి చేశానని చెప్పేసి ఆయనకి ఇంకొకసారి మరో అవకాశం ఇస్తే ఇంకా డెవలప్మెంట్ చేస్తారు. నిజామాబాద్ అర్బన్ ఇన్ఛార్జ్ అయిన షబ్బీర్ అలీ గారి ఆశీర్వాదాలు ఆయనకు ఉన్నాయి. ఖచ్చితంగా రాబోయే రోజుల్లో ఆయన మళ్ళీ కార్పొరేటర్ అయితే షబ్బీర్ సారే ఉన్నట్టు ఇక్కడ మీకు నేను చెప్పక తప్పదు. ఆయన తోటి ఇంకా ఫండ్స్ తీసుకొచ్చి మీకు కావాల్సిన మౌలిక సదుపాయాలు అన్నీ కూడా చేస్తారని చెప్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज डिवीजन नंबर 13 14 फाइनेंस के तहत 10 लाख रुपए की सीसी रोड का इनाग्रेशन हुआ है, जिसमें मेहमान खुसूसी नूडा चेयरमैन सिटी सदर केशवेनु साहब, ऐसे ही जावेद इकराम साहब, डंडू शेखर साहब और एक्स डिप्टी मेयर एम.ए. फहीम साहब, खदीर साहब और कारपोरेटर अकबर हुसैन साहब, जाफर साहब, हमारे ब्लॉक सदर कमेटी के सदर अबूद बिन हमदान साहब और इमरान, हमारे जाफर साहब, नवाज साहब और महल्ले के सभी तमाम का शुक्रिया अदा किए, आईएस वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह इसी कोशिश से और 1 करोड़ रुपए आईएस है हमारे डिवीजन नंबर 13 के लिए
वो भी जल्द से जल्द इनाग्रेशन करेंगे। अभी तक 5 साल की मियाद में मैं 12 करोड़ के ऊपर ये वार्ड में डेवलपमेंट किया हूँ। 1 करोड़ रुपए से पानी की पाइपलाइन और 50 लाख रुपए की लागत से खंभे वगैरह डाल के 10-12 करोड़ के ऊपर मैं काम किया हूँ। इंशाल्लाह आगे भी करूंगा। महिला वालों का खास तौर पे शुक्रिया जिन्होंने मुझे ये 5 साल का मौका दिया है। अस्सलाम वालेकुम। चेयरमैन साहब को एक फरियाद कर रहा हूँ कि जो लाइटा के जो टावर रहता है तो नूडा चेयरमैन साहब बोले ठीक है देंगे। एक यहाँ धर्मापुरी अपने आमिना बिल्किस के पास जो 5 लाइट का टावर आता और एक जैसे गोदाम चौरस्ते पे साहब तयखुन दिए कि जल्द से जल्द कराएंगे बोल के उनका इसलिए भी शुक्रिया अदा करते हैं। हुकूमत की फलाई स्कीमों से इस्तिफादे के लिए डिवीजन 56 में प्रजापालना प्रोग्राम 322 दरख्वास्तें मौसूल। 56वें डिवीजन कॉर्पोरेटर बबलू खान का बयान। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से अवामुन नास को फलाई स्कीमों से मुस्तफीद करवाने के सिलसिले में आज प्रजापालना प्रोग्राम का मिलन गेस्ट हाउस अहमदपुरा कॉलोनी निजामाबाद में 56वें डिवीजन कॉर्पोरेटर बबलू खान की निगरानी में कामयाब इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर साबिक डिप्टी मेयर एम.ए. फहीम, डिवीजन इंचार्ज मोहम्मद जिया अहमद, अयूब खान व सरकारी नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौके पर डिवीजन 56 की आवाम की जानिब से फलाई स्कीमों जिनमें रईतु भरोसा, इंद्रमा मकाना, राशन कार्ड, इंद्रमा आत्मीय भरोसा शामिल है, इनके लिए दरख्वास्तें दी गई। कॉर्पोरेटर बबलू खान ने बताया कि गुज़िश्ता प्रजापालना प्रोग्राम के तहत डिवीजन 56 165 नए राशन कार्ड को हुकूमत की जानिब से मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि आज मुनक़िदा प्रोग्राम में अवाम की जानिब से मुख्तलिफ फलाई स्कीमों के लिए 322 दरख्वास्त मौसूल हुई है। मुस्तहिक़ गरीबों को सरकारी फलाई स्कीमों से मुस्तफीद कराने के लिए ग्राम सभा का इनेकाद। अवाम से मौसूल होने वाली दरख्वास्तों को ओहदेदारान ऑनलाइन रजिस्टर करें। आरमूर आरडीओ राजा गौड़ का बयान। तेलंगाना हुकूमत 26 जनवरी से 4 फलाई स्कीमात नाफिज करेगी। इसी के तहत भीमगल कस्बे के 6वें वार्ड में वार्ड सभा का इनेकाद किया गया। आरमूर आरडीओ राजा गौड़ ने मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस माह की 26 तारीख से हुकूमत रईतु भरोसा, इंद्रमा मकाना, राशन कार्ड, इंद्रमा आत्मीय भरोसा व दीगर जैसी स्कीमें नाफिज कर रही और कहा कि हर वो शख्स जो इन स्कीमों से फायदा उठाने का अहल है वार्ड मीटिंगों से फायदा उठा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर किसी का नाम फहरिस्त में मौजूद नहीं है तो वो दोबारा दरख्वास्त दे सकता है। मुतल्लिका स्कीमों के लिए अहल अफराद की फहरिस्त वार्ड सभा में सबकी मौजूदगी में पढ़कर सुनाएगी। दरख्वास्तें अहल अफराद से वसूल की जाती हैं। जिनके नाम फहरिस्त में नहीं है वो परेशान ना हो। इस मौके पर म्यूनिसिपल चेयरपर्सन के प्रेमलता, सुरेंद्र, रामकृष्णा, वार्ड काउंसलर्स, सीएच गंगाधर, मंडल कांग्रेस कायदीन दीगर भी मौजूद थे। సొంత జాగా లేని వాళ్ళకు ఇందాక చైర్మన్ గారు చెప్పినట్టుగా గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉండేటువంటి ప్రజలు మన దగ్గర కూడా వాళ్ళకి ఈ టీచర్స్ ఏర్పాటు చేస్తాం. సో ఈ స్కీమ్స్ అర్హులైనటువంటి లబ్ధిదారులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పెద్దలు కానీ యువకులు కానీ చదువుకున్న వాళ్ళకి కొంతమంది ఉంటారు. సో వాళ్ళకి సంబంధించి ఎవరైతే అర్హులైనటువంటి లబ్ధిదారులు ఉన్నారో ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి లేకపోతే ఇప్పుడు కూడా అప్లికేషన్స్ పెట్టించండి. అర్హులైనటువంటి ప్రతి లబ్ధిదారులు కూడా ప్రభుత్వ పరంగా ఈ స్కీమ్స్ అందేటట్టుగా అధికారులు కానీ ప్రజాప్రతినిధులు కానీ తప్పకుండా మేము చర్యలు తీసుకుంటాం. స్థానికంగా ఉన్నటువంటి डिवीज़न 31 में वार्ड सभा प्रोग्राम से अवाम इस्तिफादा हासिल करे और दरख्वास्त दाखिल करने के बावजूद राशन कार्ड से महरूम मुस्तहिक़ अवाम 31वें डिवीज़न सतीश नगर स्कूल में 1 बजे तक 5 बजे 24 जनवरी को दोबारा दरख्वास्त दे। हर मुस्तहिक़ को हुकूमत की फलाई स्कीमात से मुस्तफीद करवाना ही मकसद। 31वें डिवीज़न कांग्रेस हरकियाती क़ायद व सेवादल सेक्रेटरी सद्दाम खान का बयान। अवाम की रहनुमाई की। इस मौके पर शेख अफसर, शमशू, इमरान, रिजवान व दीगर भी मौजूद थे। पूरी आवाम से गुजारिश किया जाता है 31 डिवीज़न कल 24 तारीख के दिन सतीश नगर स्कूल में प्रजापालना की जो भी चिट्ठी की दरख्वास्त दी है, जिसको भी न्यू एप्लीकेशन राशन कार्ड दिए हैं, जिसको भी नहीं आए सतीश नगर स्कूल 1 बजे से 5 बजे तक 24 तारीख के दिन सतीश नगर स्कूल में आके अपने अपने राशन कार्ड की दरख्वास्त हासिल कर सकते हैं। कल 24 तारीख लास्ट दिन है। एक बजे से 5 बजे तक का टाइम है। जिसको भी एप्लीकेशन की फॉर्म दिया जाता है, अपील किया जाता है, जिसको भी डबल बेडरूम का भी है सतीश नगर स्कूल में 1 बजे से 5 बजे तक इस्तीफा हासिल करें। 24 तारीख
एड़पली मंडल के जंगमपेट गांव में जिस सत्यवती की रिहायशी झोंपड़ी जली जिससे सारा साजो सामान जलकर खाक, मुतासरा ने हुकूमत से इमदाद की अपील। एड़पली मंडल के जंगमपेट गांव में एक वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक माला जंगम सत्यवती की रिहायशी झोंपड़ी चारशंबे की रात 9 बजे जली। आग लगने से घर में मौजूद कपड़े, जरूरी सामान और कीमती सामान जलकर खाक हो गए। मुकामी अवाम की इत्तला पर फायर ब्रिगेड के अमले ने जाए हादसा पर पहुंचकर फायर इंजन की मदद से आग पर काबू पा लिया। इस मौके पर मुतासरा सत्यवती ने इल्जाम लगाया कि नामालूम अफराद ने उसकी रिहायशी झोंपड़ी को आग लगा दी, जिसकी वजह से जरूरी अशिया के साथ कपड़े, चावल और नकद भी जलकर खाक हो गए। मुतासरा ने हुकूमत से इमदाद की अपील की। ఈడికి వస్తేనే జర అఫీసుతనం తక్కువైంది. ఆ పాలలతోటి ఆడ ఏంటికంటే ముత్యమ తాను 4 లక్షలు వస్తే బీరోలో పెట్టుకున్నా, రేకులు వేస్తాను. 7 లక్షలు అయినాక ఎస్సీలకు కొన్ని పైసలు ఇస్తాంటని అంటే ఆయనతో అవి ఇవి కలిపి ఇంత సులభన పోసుకుంటాను ఇట్లా అనుకొని నిన్న డబుల్ బెడ్రూమ్ కూడా రాసిచ్చిన, డబుల్ బెడ్రూమ్కు రాసిచ్చి కూడా వచ్చిన. అవన్నీ కాలిపోయినాయి. 3 మాసాలకు అమ్మలు చేపించుకున్న ముత్యాలతోటి అవి కూడా పోయినాయి. ముళ్ళు కట్టి బస్తలు పెట్టిన ఆ బట్టలల్లా అవి పోయినాయి. మళ్ళీ ఓపెన్ చేసిర్రు బీరువా, అవి కూడా తీసుకున్నారు, అవి పోయినాయి. అన్నీ కాలిపోయినాయి. బియ్యము, కారము అన్నీ పోయినాయి. ఏం లేవు ఇంట్లో. ఆధార్ కార్డు కాడికి వెళ్ళి కూడా లేదు సార్. అన్నీ పోయినాయి. మీ దయచేసి చెప్తున్నా, నాకు ఏదన్నా న్యాయం చేయండి సార్. మీ కాలు మొక్కుతా సారు. ఇప్పుడు తెచ్చుకొని ఇప్పుడు కిలో తెచ్చుకొని తినేదాన్ని సారు. నేను ఏదో కానీ నాకు లేక ఇదైతున్నా సారు. నేను ఏదో इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। वार्ड सभा के जरिए हासिल होने वाली दरख्वास्तों को फौरन ऑनलाइन दर्ज करें और मुस्तहिकीन को हुकूमत के इस्तेमाल से मुस्तफीद करने के लिए शिफाफ जांच करें। जिला कलेक्टर हनुमंतु। मुस्लिम तलबा की तालीमी पसमानदगी को खत्म करना ही एमआईएम का मकसद। सियासी शऊर के साथ बेबाक बेखौफ आगे बढ़ने की जरूरत। एमएलए अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला। आरमूर आरटीसी बस स्टैंड में कंट्रोलर से बस का वक्त दरियाफ्त करने पर कंट्रोलर और सिक्योरिटी गार्ड्स की मुस्लिम जोड़े के साथ गाली गलौज व धक्कम-पील, तासुबियत का बदबख्ताना अमल, इख्तिमाद का मुतालिबा। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज। परवाज़ टीवी के लिए लेडी न्यूज एंकर की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल, वाक़ई गुलाम चौराहा, नस्ल, विश्व शांति कॉलेज, 5 ता 7 बजे शाम। राब्ता करें या कॉल करें।